Hello and welcome to Namo Connect. Today we have with us our State President of Delhi Pradesh Bharatiya Janata Party. He's also one of the tallest leaders from the Delhi state. He happens to be a national level leader for us, and he's the very famous, very popular Vijay Goyal ji. I'll give you a short introduction. He's currently the president of Delhi BJP since February 2013. He's an alumnus of SRCC and has done his LLB from the Faculty of Law in University of Delhi. He was a member of the RSS and was jailed during the emergency in India. And on release, he became the president of Delhi University Students' Union, the very prestigious Delhi University Students' Union, in 1977, as a candidate of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. In short, ABVP for you all. He has been a member of the parliament in the 11th, 12th and 13th Lok Sabha, that is 3 times over, and has represented the Southern and Chandni Chowk constituencies. He has also served as the Union Minister of State for Labour, Parliamentary Affairs, Statistics and Programme Implementation and Youth Affairs and Sports in the NDA government until 2004. And Prime Minister Office. And in the Prime Minister Office as well. Thank you for correcting me. I'm Nupur Sharma. I am the National Media Co-in-charge of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, and I'm also with Vijay Goyal ji. I'm in his team as a state executive member of the Delhi BJP. So, sir, I would like to first ask you for your remarks and observations about how technology can actually make you interact live with the people who may have a lot of questions to ask of you regarding BJP and its policies. पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और दूसरा मैं समझता हूं ये टेक्नोलॉजी है जिसके कारण मैं आपसे बड़ी आराम से, सुविधा से, कन्वीनियंस से बात कर पा रहा हूं। पहले ऐसा नहीं था जी, पहले हम पोस्टर से, पैम्फलेट से डोर टू डोर बात करते थे, पर अभी मुझे अपना मैसेज भेजना हो तो आज फेसबुक पे मेरे साथ 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं। मैं 5 मिनट के अंदर उनके साथ इंटरेक्ट करता हूं, और दिन भर में मैं जो काम करता हूं, मेरा जो विज़न है और मैं जो सोचता हूं और मेरे जो सपने हैं, उनको मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। तो मैं समझता हूं इस टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हम सब लोग बहुत इंटरेक्ट करते, आपस में इंटरेक्ट आराम से करते हैं। और नुकसान ये है कि अब सारे यंगस्टर जो हैं वो 24 आवर्स इंटरनेट के ऊपर बैठे रहते हैं, और मैं खेल के मैदानों में और सड़कों पे मुझे नहीं दिखाई देते। With that, I think we will start with the first question. So the first question comes from Nina Rai. I'd like you to give your introduction and where you're from, and then please go ahead with your question to sir, please. Good evening. My name is Nina and I'm from New Delhi. And my question to Vijay Goyal ji is regarding this photograph. Now I'm going to flash this photograph and pan it right and left. If you can just take a look. I don't know whether you can see it. Can you see this picture, Mr. Goyal? Yeah. This is you. I think this is you, and you're being caught by पुलिस। Yes. So I was really curious about this question. I mean this photograph. So I wanted to know ये क्या हुआ था आपके साथ? आपको पुलिस इतनी badly क्यों treat कर रही थी? What happened? ये ना एक बार नहीं हुआ था, हमारे साथ कई बार हुआ था। इसलिए अच्छा। उसमें से एक फोटोग्राफ है, आप देखेंगे 6 सिपाहियों ने मेरा हाथ पैर सब कुछ पकड़ रखा है। हाँ। और हम लोग, मेरे पिताजी इमरजेंसी के अंदर, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जी। जिस समय डिक्टेटरशिप हो गई थी, उस अच्छा। समय मेरे फादर 19 महीने जेल के अंदर थे, और जी। मैं भी कोर्ट अरेस्ट कर सत्याग्रह करके जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ जुड़कर जेल गया था। अच्छा। जब मैं स्कूल डेज में था और कॉलेज में था, तब से मैंने आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। शिमला समझौता जो हमारे हो रहा था, उसको सबसे पहले मैंने किया। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। No, actually we don't know. It was Yes. emergency was too early for us. I think half of us wouldn't have been born. अभी तो आप लोगों को इमरजेंसी के बारे में भी मालूम नहीं होगा ये। Nothing. Please tell us. You know, we've only read about it in books. Like, for example, I read the biography of, Maharani Gayatri Devi, and also I read Darbar. I would love to hear it firsthand because you've gone through it firsthand. Tell us what happened. 74 के अंदर इंदिरा गांधी चुनाव के अंदर उनका चुनाव चैलेंज हो गया था। अच्छा। और राजनारायण जी ने चैलेंज किया था उनका, और अच्छा। कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। तो Okay. वो जाहिर तौर के ऊपर ना प्रधानमंत्री रहती और ना एमपी रहती। जी। तो इसके लिए उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। हमारे यहाँ एक इमरजेंसी का प्रोविजन है। ज्यादातर तो वो इमरजेंसी इसलिए लगती है कि जब एक्सटीरियर खतरे होते हैं तब उस पर इमरजेंसी लगती है। जी। पर उस समय सारे नियमों को ताक पे रख के, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे,
उनसे ऑर्डिनेंस पे साइन कराए गए और Okay. उसके बाद देश भर के अंदर इमरजेंसी लगने का मतलब है कि अखबार के अंदर वही खबर छपेगी जो सरकार सेंसर करके देगी। और जी। जितने भी विरोधी नेता थे बड़े बड़े, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, जितने भी आपने ऑपोजिशन के नाम सुने होंगे उन जी। सबको जेल में डाल दिया गया। और हम जो लोग इमरजेंसी की खिलाफत करती थी उनको जेल में डाला गया। जी। फिर एक स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया गया। फिर हाँ। इमरजेंसी में डिक्टेटरशिप आ गई एकदम, हर जी। आदमी छुपने लगा। कोई भी आदमी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के खिलाफ बोलता था तो उसको हाँ। इमरजेंसी में जेल में डाल दिया जाता था। हाँ। तो 75 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद 77 में तब हटी जब उनको यह विश्वास दिलाया गया कि हाँ। लोगों ने इमरजेंसी को लाइक किया है, इस डिक्टेटरशिप को, आप जी। दोबारा चुनाव में जाएंगी तो जीत जाएंगी। उन्होंने जी। गलती से चुनाव करा दिया, वो भी हार गई, उनका बेटा भी हार गया और उस समय जनता पार्टी की सरकार आ गई। जी। अच्छा, ये this I find really surprising. If आप we इसके लिए ना बुक्स होंगी मार्केट में, जी। उसको लेकर पढ़िए। और मैं समझता हूँ यूथ को इस इमरजेंसी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि 47 के बाद पहली बार 19 महीने के लिए ये इमरजेंसी लगी थी, जिसमें आपके सारे जितने ह्यूमन राइट्स थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए थे जी। मानव अधिकार समाप्त हो गए थे। कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर पा रही थी उस समय। कोर्ट भी के ऊपर भी सरकार का कंट्रोल था। जैसा आप पाकिस्तान में देखते हैं आर्मी का कंट्रोल हो जाता है, ऐसे ही इसमें इमरजेंसी पावर्स के अंदर सरकार ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। तो इसमें आपके पिताजी जेल गए थे और आप भी जेल गए थे? मैं सत्याग्रह करके जेल गया था। मेरे पिताजी को पहले दिन ही घर से पकड़ लिया गया था। ओहो, वो भी जनसंघ के बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन। तो आप पढ़िएगा जरूर, मुझे अच्छा लगा आपने जानने की कोशिश की इसके बारे में। नहीं, you know why? Because you know when we take a look at history, actually, you know the only dictator we come across in this country has been Indira Gandhi, and they have the audacity. I mean, she behaved like Hitler, and then we have the audacity to call Modi a Hitler. He's not even been in power. Right. So that was and I was very curious about that picture and what happened to you. So, anyways, I'll pass on to the next lady, and she'll ask the next question. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you, Neena. It's like reliving history. वो भी उस जमाने की जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। I know that's what. So you know, I was very curious कि वहाँ क्या हुआ, लोग कितनी पिटाई खाए. I mean, you know, you only get it through books, and it's lovely to hear Mr. Goyal tell us first hand कि हुआ क्या. मेरी वाली। ये पता नहीं अनीना आपने फोटो कहाँ से ली है, पूछना चाह रहे हैं विजय जी। ये फोटोग्राफ ट्विटर पे किसी ने ट्वीट की थी। आई थिंक आपके ट्विटर अकाउंट से या कहीं से ट्वीट की थी। सो ये फोटोग्राफ मुझे मिली फेसबुक ट्विटर से। देन आई आस्क्ड पीपल कि ये फोटोग्राफ क्या। आई वाज वेरी क्यूरियस, मेरे को 1-2 महीने से था मैं पूछूं कि ये क्या हुआ, बट देन इट्स लवली टू टॉक टू यू नाउ एंड आई नो नाउ व्हाट हैपेंड। That's very good. In fact, ऐसी रिसर्च करती रहनी चाहिए। We will be enlightened. इससे पहले मैं एक जरूर एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि आप लोग जो हमारे को लाइव देख सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप प्लीज #NamoConnect यूज करके कोई भी सवाल अपना पूछ सकते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट है @Nupur Sharma BJP, मुझे भी उसमें टैग कर दीजिए। सो आई हैव माई iPad विद मी। मैं आपको कोई भी लाइव सवाल विजय जी से आप पूछ सकती हूँ। नाउ वील गो ऑन टू मोनिका। मोनिका, आप अपना प्लीज अपना पूरा इंट्रोडक्शन, अपना सिटी बता के फिर अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज सर से। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की है और आगे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD करूँगी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2020 में करीब 64% जो जनता है भारत की वो वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होगी और इसे इंटरनेशनल रिलेशंस में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी सर का अगर हम कैंपेन देखें पिछले 5 साल से अगर हम देखें तो मोस्टली यूथ हैज सपोर्टेड हिम बिग टाइम, बट पिछले 10 सालों में जब से यूपीए पावर में है, इकोनॉमी हैज बीन इन शैम्बल्स। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें, सर्विसेज सेक्टर देखें, ग्रोथ हैजंट रियली बीन अप टू द मार्क। तो किस तरह से एज अ यूथ, यू नो, आई वांट टू नो हाउ स्पेशली बीजेपी इज ट्राइंग टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम, हाउ बेटर, यू नो, चांसेस फॉर यूथ इज गोइंग टू बी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो स्किल इम्पार्टमेंट। मोनिका, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नेंस। अभी क्या है, मनमोहन सिंह जी के टाइम के अंदर देयर इज नो गवर्नेंस। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। व्हाट टू टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस है। तो सबसे बड़ी बात है, जो भी लीडरशिप है उसके पास विजन होना चाहिए, नंबर 1 बात। उसके बाद उसके पास विल पावर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, उसकी आंखों के अंदर सपने होने चाहिए और फिर सपने के काम करने के लिए उसके अंदर दम होना चाहिए जी।
इसलिए आपने ये देखा होगा कि मोदी साहब ने जो कुछ किया, और आज हमारी इकोनॉमी जो शैम्बल्स में आपको दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है कि किसी ने कोई प्लानिंग ही नहीं की है जी। आज देश के अंदर 5 ईयर प्लानिंग की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर कम से कम 20 साल की प्लानिंग होनी चाहिए कि 20 साल बाद हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी होगी, उस समय कितने रोजगार हमको चाहिए होंगे, उस समय कितनी बिजली होंगी, कितनी सड़कें होगा, कितना पानी होगा, कितने हॉस्पिटल, कितने डिस्पेंसरीज, कितने कॉलेजेस खुलेंगे, कितने यूनिवर्सिटी खुलेंगे, उसको आज हमको विजन करना पड़ेगा। मोदी साहब की जो खास बात यह है कि वो सपने देखते हैं, वो विजनरी आदमी हैं। उन्होंने गुजरात के अंदर एक डिफरेंट तरीके से काम किया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बार उन्होंने मुझे एक बात बताया कि मेरे यहाँ जो फिशरमैन थे, जो मछली पकड़ते थे, वो समुद्र के अंदर चले जाते थे। समुद्र में जाके मछली पकड़ते पकड़ते वो दूसरे देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते थे, इससे वो अरेस्ट हो जाते थे। तो उन्होंने कहा हमने ऊपर एक सैटेलाइट लगा दी, उस सैटेलाइट से उनको अपने समुद्र की सीमा पता लग जाती थी और ये भी पता लग जाती है कि मछली कहां पर है। तो उससे एक तो वो दूसरी सीमा नहीं क्रॉस कर सकते, दूसरा उनका टाइम नहीं खराब होता, और तीसरा उनका डीजल नहीं वेस्ट होता इधर उधर घूमने के अंदर। वो सीधा मछली के पास जाते हैं, जो कि उनको सैटेलाइट से पता रखती है। ऐसा इक्विपमेंट उनकी नाव में भी लगा रहता है। तो ऐसे बीसियों उदाहरण ऐसे हैं जो मोदी साहब ने देखे हैं जी। तो देश चलाना आना चाहिए, उसके लिए आपके पास गवर्नेंस होनी चाहिए, और फिर गवर्नेंस के बाद गुड गवर्नेंस का नंबर आता है। पर आपके पास विजन ही नहीं है और आप लीडर हो गए हैं और आप पीएम हो गए हैं। अब जैसे वाजपेयी जी थे, उन्होंने देखा था कि सबसे ज्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इसलिए उसने नेशनल हाईवेज बनाने शुरू किए, और सबसे ज्यादा सड़कें मैं समझता हूं अगर किसी में बनी तो वाजपेयी जी के समय के अंदर बनी। उन्होंने जो परमाणु विस्फोट किया, उससे पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा एक नाम हुआ। उसके बाद भी उन्होंने इकोनॉमी को अमेरिकन सैंक्शंस के बाद भी बचा लिया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी के पास विजन है तो वो अच्छा देश को शासन दे सकता है। आज नरेंद्र मोदी साहब के पास वो है। ओके सर, थैंक्स फॉर आंसरिंग। थैंक यू। आपने सर आपने बोला कि एनडीए गवर्नमेंट के बीच में आपने बात करी थी अबाउट बिल्डिंग हाईवेज। ये तो बट ऑब्वियस है, जितना शायद विकास एनडीए गवर्नमेंट के रूल के टाइम पे हुआ था, जब सर खुद यहाँ पे एक यूनियन मिनिस्टर थे, तो उतना शायद उसके बाद 9 साल में हो नहीं पाया, शायद ना कांग्रेस की बस की बात है। तो मैं इसलिए एक रिलेटेड सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपका हार्डवर्क मैंने खुद देखा है आपकी टीम में रहते हुए। मुझे पता चला है, मुझे सर ने नहीं बताया कि 4:30 बजे सर का दिन शुरू हो जाता है, एंड ही इज आउट एंड अबाउट वर्किंग फॉर द पार्टी एजेंडा सिंस 4:30 AM एवरी मॉर्निंग। तो ये जो सिंगल डिजिट लॉटरी जो बैन हुई थी, उस टाइम पे मैं खुद स्कूल में थी जब एनडीए की गवर्नमेंट थी। तो ये इस टाइम पे आपका जो पैशन और आपका हार्डवर्क है, आपका जो कमिटमेंट है, is it that ban on single digit lottery that made the leaders like Atal ji and Advani ji take note? And हमें याद है कि विजय गोयल जी का जो इनिशियल्स है उसे वीजी कहते हैं, तो अटल जी ने बहुत फॉन्डली कहा था वीजी इज फॉर वेरी गुड। तो जब स्पेशली जब आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएमओ एंड प्लानिंग कमीशन रखा था, तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उस टाइम दौरान कैसा था एंड व्हाट इज द सीक्रेट टू योर हार्ड वर्क? देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी से ये 150 करोड़ का देश प्यार करता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी हमसे प्यार करते थे। इसलिए वो हमको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्होंने मिनिस्टर लिया कि ताकि हम पीएमओ को के अंदर अपने सुझाव और उसको रन कर सकेंगे। दूसरी बात यह है, आपने जो सिंगल डिजिट लॉटरी की बात की, इस देश में लॉटरी बहुत सालों से चलती थी, पर वो सिंगल डिजिट नहीं थी। अभी ये जो मेरे सामने यंगस्टर्स हैं, इनको ये भी नहीं मालूम होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी डिजिट एंड सिंगल डिजिट लॉटरी। तो वो सिंगल डिजिट लॉटरी जब से शुरू हुई, मल्टी डिजिट तो पहले से थी, तो उसके कारण लाखों लोग लॉटरी को खेलने लगे और लाखों लोगों ने अपना व्यवसाय बना लिया लॉटरी बेचने को। उसके कारण लोग सुसाइड कर रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, मकान बेच रहे थे, दुकान बेच रहे थे। तो मैंने देखा कि मेरा ड्राइवर और दूसरे लोग भी अपना पैसा गंवा रहे हैं लॉटरी खेल खेल के, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस लॉटरी के खिलाफ एजिटेशन चलाऊं। तो मैंने 10 साल लगातार लॉटरी के खिलाफ एजिटेशन चलाया, और फिर जब हमारी सरकार आ गई तो मैंने अटल जी, अडवाणी जी को कह के लॉटरी के ऊपर बैन लगा दिया। तो आज हम ये कह सकते हैं इस देश में 47 के बाद एक बुराई जो जड़ से खत्म हुई, वो थी सिंगल डिजिट लॉटरी, जिसके कारण लाखों लोग बर्बाद होने से बच गए जी। दूसरी बात ये थी, मुझे अटल जी को बड़े पास से देखने को मिला है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ मिले हो। एक वो व्यक्ति है 47 के बाद जितने देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, जो अपने हार्डवर्क और जिसने दिलों के अंदर प्रेम पैदा किया, उसके कारण वो देश का प्रधानमंत्री बना। वो बरसों बरस तक पूरे देश का भ्रमण करते रहे, उनको देश की नब्ज मालूम थी। वो एक बहुत अच्छे विदेश मंत्री भी
रहे जनता पार्टी के राज के अंदर। और मैं समझता हूं वो व्यक्ति को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोग प्यार करते थे। उनका भाषण देने सुनने के लिए हमारे जैसे लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलते थे रामलीला मैदान में। उस समय ना ये इंटरनेट थे, ना इतने चैनल्स थे, ना इतने टेलीविजन थे, तो लोग रामलीला मैदान और दूसरे मैदानों के अंदर उनका भाषण सुनने आते थे। तो मैं समझता हूँ लॉटरी बंद करने से मुझे एक बहुत बड़ा उत्साह जो मिला, एनकरेजमेंट मिली, वो ये मिली कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, हिम्मत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो मैं समझता हूं आज किसी भी चीज को आप लोग भी निश्चय के साथ करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे, तो समझ लीजिए पूरा होगा। बाधाएं आती हैं, आएंगी, रुकावटें आएंगी, पर उसके कारण आपको रुकना नहीं है। जो चलते जाएंगे वो मंजिल पाएंगे, किंतु जो बीच बीच में रुक जाएंगे थक के, वो मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए लगातार चलना है। कौन है जिसकी जिंदगी में सुख और दुख नहीं होता? सबकी जिंदगी में सुख दुख होता है। थैंक यू फॉर योर आंसर। एंड इनफैक्ट हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी बिल्कुल शुरू किया है, एक तरीके से एक मैसेज है कि वी हैव टू कंटिन्यू नो मैटर व्हाट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। और इसी बात पे नीना जिन्होंने आपको फोटो दिखाई थी, वो आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही है। उनका अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है कि मुझे एक और सवाल पूछना है। Nina, you can ask your question, please. Thank you. That was really inspiring. So my question is with regards to safety and women in this city. Delhi has become the rape capital, and it is a shame. It is an absolute shame that we have, the Sonia Gandhi as the head of the Congress, and we have a lady CM, but they seem to have done absolutely nothing for the plight of women in this country, or for that matter, for the plight of women in New Delhi. I mean, it's a shame to say. I mean, there are people from foreign countries who don't want to come to India because of the rapes. What does it say about one? What does it say about our culture? What does it say about our men? And what does it say about the government, which seems to be absolutely sleeping? I mean, we are the youth here, and young women want to go and work, and they're not able to go outside and work. Women cannot be independent. I mean, there's a lopsided development going on where men can do everything they want to do, and women just cannot do it क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि कहाँ जाओ शाम हो जाएगी, शाम के पहले आओ। I mean, शाम भी बहुत बड़ी बात है, आजकल तो दिन में ले करके लड़कियों को कार में रेप कर रहे हैं। This is heights. So what is it? I mean, what do you have to say? And आप क्या steps लेते हैं इसके लिए? बीजेपी का क्या है? देखो नीना, आपको ना सोशल और पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे हैं एकदम। पहली बात है, आप एक समझिए बात को, जब भी क्राइम होता है या जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाती है, तो जनरली लोग क्या कहते हैं, पुलिस बढ़ा दो, थाने बढ़ा दो। उससे नहीं होता जी। सरकार का और पुलिस का इकबाल होता है। इकबाल कहते हैं डर को, डर होता है जाके। अभी आप देखिए इलेक्शन कमीशन का कितना डर है। आपको कहीं पूरी दिल्ली में एक झंडा भी देखने को नहीं मिलेगा, एक होर्डिंग भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, और एक भी पोस्टर आपको दीवारों पे चिपका नहीं मिलेगा। क्यों? उनको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर किसी ने पोस्टर चिपका दिया, झंडा लगा दिया, तो इलेक्शन कमीशन हमारे पर कार्रवाई कर देगा जी, एक्शन कर देगा जी। किंतु अभी दिल्ली पुलिस का और गवर्नमेंट का डर नहीं है जी। तो जब गवर्नमेंट का डर नहीं होता तो अपराधियों को लगता है पहले तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, और फिर पकड़े गए तो हम छूट जाएंगे। इसलिए मेरा स्टेप नंबर 1 है कि गवर्नमेंट का डर होना चाहिए। अभी आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। अगर एक टेररिस्ट आज आ जाए और कहे लोगों को मैं आपको मार दूंगा, और 100 पुलिसमैन वाले आ जाएं कि हम आपको बचा लेंगे, तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? आज लोग कहेंगे जी हम टेररिस्ट पे विश्वास करेंगे, ये मार जाएगा, ये पता नहीं खड़े रह जाएंगे, बचाएंगे नहीं जी। तो इसलिए पहला स्टेप है कि भाई हमको डर होना चाहिए। दूसरा स्टेप है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस नहीं है, सबसे बड़ी बात यह मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस। आप ये देखिए, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जब क्राइम हो जाता है तो सीटी बजाती हुई जिप्सी आती है और तब पहुंचती है जब अपराधी भाग जाते हैं जाके। क्यों? क्योंकि जो क्राइम करने वाले लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, और हमारे पास अभी भी 303 है, उसके बाद AK-47 अभी हमारे पास है, जबकि हमारे पास P5 होनी चाहिए, और P5 हमारे पास है नहीं। इसी तरह से हमारे पास जिप्सी है जो हिचकोले खा के बड़ा आस्ता आस्ता चलती है, उनके पास फास्ट गाड़ी है। उसके बाद हमारे जितने पुलिस वाले हैं उनको ड्राइविंग नहीं आती है। मैं पुलिस कमिश्नर को मिला था कि हर पुलिस वाले को ड्राइविंग तो आनी चाहिए कम से कम। फिर हमने पुलिस वालों को फोन नहीं दे रखे, मोबाइल फोन नहीं दे रखे कि वो तुरंत कम्युनिकेट कर सके, तो उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, पेट उनके बाहर निकले हुए हैं, रोज सवेरे ड्रिल नहीं करते हैं वो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो सकता है। और उससे ज्यादा जो चीज है वो है संस्कार, कि भाई आपकी टीचिंग्स क्या है। क्योंकि आप ये समझिए, क्राइम कोई
पुलिस से नहीं रुका हुआ, क्राइम धर्म से रुका हुआ है जी। और सब हमको डर रहता है, चोरी करेंगे तो पाप लगेगा, कोई ना कोई हमको देख रहा है, ईश्वर हमको देख रहा है, जाके गलत काम हमको नहीं करने चाहिए, इसके कारण क्राइम रुकता है। तो अभी हम तो शिक्षाएं ऐसी देती नहीं है, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, स्कूलों के अंदर से नैतिक शिक्षा खत्म हो रही है, बच्चों के अंदर से डर निकलते जा रहे हैं, लोगों को क्विक मनी बनाना है, इसलिए भी अपराध होते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहला मेरा इशू है गवर्नेंस होनी चाहिए, दूसरा यह है पुलिस का डर होना चाहिए, तीसरा यह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस होना चाहिए, और चौथा यह है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, जनता में खौफ नहीं होना चाहिए थाने में जाने में, किंतु अपराधी को लगना चाहिए कि पकड़े जाएंगे तो छूट नहीं पाएंगे। Also, do you support the there was a request that the police should be made independent, like the army is absolutely independent, the police is not yet independent. So does the BJP support that as well? देखो, पुलिस तो वैसे इंडिपेंडेंट है, पर कई बार पॉलिटिशियंस और रूलर्स उनको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते हैं। अब ये तो पुलिस कमिश्नर है को वो देखो कि वो कितने निष्पक्ष ढंग से काम कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये है जी। कोई अधिकारों की बात नहीं है। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं अरे पुलिस तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है, भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में है, ये बहाना तो तब चलता है। ये तो this is just making a fool of people. I'm really sorry. I mean, if anyone buys this, they're just this is making fool of people, you know. और देखो, जब सीएम ये कह देती है कि मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, ये कहकर वो और महिलाओं में डर बिठा देती है, रुको अपने घर में रखना बच्चियों को, मेरी ही बेटी सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो तो ये भी कहती है कि 9 बजे के बाद निकलने का क्या है, घर में बैठो, अच्छा काम खत्म हो जाता है लोगों का 9 बजे। और जितनी कंट्रीज है उनमें एडवाइजरी इशू हुई है कि अगर दिल्ली जाओ तो 6 बजे के बाद होटल में वापस आ जाना जी, इससे देश की बड़ी बदनामी होती है जी। Yeah, which is such a sad thing. Well, thank you for answering my question, and back to you, Nupur. Thank you. Yes, thank you so much, Nina. The next question comes from Abhinav Jha. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज, और अपना सिटी भी बताइए, साथ में सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर, मैं अभिनव हूँ। मैं अभी दिल्ली में रिसाइड कर रहा हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था हंसराज कॉलेज से ही, एंड आई एम वर्किंग फॉर ए मल्टीनेशनल बेस्ड इन गुड़गांव राइट नाउ। सर, तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बिगनिंग में ही पॉइंट आउट किया था कि काफ़ी बड़ा डेमोग्राफ है इंडिया का राइट नाउ, लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व है, एंड पोस्ट 2009 जनरल इलेक्शंस एक बहुत बड़ा पार्ट पॉपुलेशन है इंडिया का जो उस समय एलिजिबल नहीं था, लेकिन अपकमिंग इलेक्शंस में एलिजिबल होगा वोट करने के लिए। तो क्या बीजेपी ने कोई एक यूथ सेंट्रिक या यूथ स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई है उनके वोट्स को वू करने के लिए इस इलेक्शन के लिए, या फिर सोशल मीडिया पे ज्यादा कंसंट्रेट करने का कोई प्लान है क्या? देखिए, सोशल मीडिया पे कंसंट्रेट करना और पॉलिसी बनाना दो अलग अलग चीज हैं जी। सोशल मीडिया पे तो मैं रोज अपनी एक्टिविटीज को डाल सकता हूँ, आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपका अच्छा है कि भाई क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई यूथ के लिए पॉलिसी बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है यूथ के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये है कि आज बच्चा पैदा होते ही माँ बाप की टेंशन शुरू हो जाती है कि भाई नर्सरी स्कूल में इसको दाखिला दिलाना है, किसी स्कूल में नर्सरी में दाखिला नहीं मिलेगा, इसकी फीस कहाँ से भरेंगे हम, अच्छे स्कूल कहाँ से मिलेंगे, और फिर बच्चे को एक जोर से चांटा मारते हैं कि तेरे को अभी तक ABCD लिखना नहीं आता। वो ये नहीं देखते कि ये बच्चा है अभी से इसको टेस्ट में क्यों डाल दिया है जी। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसको कॉलेज के अंदर प्रॉब्लम है। आज कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, तो सबसे पहले बीजेपी चाहती है कि भाई लोगों को अच्छे कॉलेजों में सब में एडमिशंस मिले, उसके लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए जी। अभी ये जो राइट टू एजुकेशन बना है ये तो बहुत ही खराब बन गया है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में पहले ये था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे और सीधा अपीयर होते जाएंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, बिना पढ़ाए बच्चों को इसलिए पास किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई देखिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट कितने अच्छे आ गए हैं जी। तो ऐसे हम बीजेपी चाहती है कि, और हमने सब 15 नए कॉलेज खोले थे जब हम गवर्नमेंट में थे 93 के अंदर जी। पिछले 15 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक भी नहीं कॉलेज खोला। पहले भी 54,000 सीट्स थी DU में, अभी भी 54,000 सीट्स हैं। कोई नई यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जी, कोई इन्होंने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी नहीं खोली। तो बीजेपी ये सब करने वाली है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो उन्होंने नहीं किया है। दूसरा, उसके बाद जॉब्स की बात आती है। वो जो जॉब्स की बात सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनडीए की सरकार में थी तो हमने बहुत जॉब्स दिए थे। अभी इस गवर्नमेंट में इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कि हम बहुत जॉब्स देंगे, किंतु वो जॉब्स नहीं दे पाए। अब जैसे जो IT हब गुड़गांव में बन गया या नोएडा में बन गया, वही IT हब दिल्ली में भी बन सकते थे, पर दिल्ली में तो स्लम बनता जा रहा है, IT हब्स नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों को और नौकरियां मिल सकती थी। इसी तरीके से स्कॉलरशिप्स है, इसी तरीके से एजुकेशन के लोन सस्ते हैं, इसी तरीके से पढ़ाई है, और सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है। सारी लाइफ जो है
वो केवल पढ़ना और नौकरी करना नहीं है जी, उस लाइफ को बैलेंसिंग करना भी बहुत जरूरी है। हम जब कॉलेज के अंदर थे तो हम श्रीराम कॉलेज से हमने बीकॉम किया, एमकॉम किया, कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की, हम यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल की टीम में थे, हम खो खो की टीम के अंदर थे, हम एनसीसी के अंदर थे, हम डिबेटर थे, हम पढ़ाई में भी ठीक थे, हम पॉलिटिक्स में भी आ गए, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे। तो आपको भी अपनी लाइफ बैलेंसिंग करनी है, तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी आप देखते हैं स्टेडियम्स बने, सब खाली पड़े हैं, क्योंकि उनकी भारी फीस लगा दी है, टूर्नामेंट्स हो नहीं रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा, तो करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो वेस्ट हो रही है। तो मैं समझता हूं यूथ के लिए सभी तरह की एक्टिविटीज के लिए प्रोविजंस बीजेपी सत्ता में आएगी तो करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द आंसर। थैंक यू सर फॉर योर आंसर। अब मैं ट्विटर पे एक लाइव क्वेश्चन लेना चाहूंगी, ये सुंदर जी के नाम से है, इनका ट्विटर हैंडल है एसके देश पांडे। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आप आम आदमी पार्टी का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उससे कितना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, और वेदर पीपल स्टिल वांट टू वोट फॉर आम आदमी पार्टी। देखिए, इस देश की जो जनता है वो एक बड़ी चीज है, वो बहुत जल्दी चढ़ाती है और बहुत जल्दी उतार देती है नीचे जी। जो जितना शोर मचाएगा मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, उसके ऊपर अगर दाग आएगा तो जनता एकदम ये कहेगी अपने आप के अंदर ईमानदार बहुत चिल्लाता था और देखिए इसमें इतना है जी। तो दो बातों से आम आदमी पार्टी की छवि को खराब हुआ और उससे देश का विश्वास भी टूटा है। पहला ये है, अन्ना हजारे जहां जो इनके गुरु रहे हैं, उन्होंने ही जब फंड्स को लेकर आरोप लगा दिए तो जनता को ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये इतने भ्रष्टाचार कर रहे थे तो इनको पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की क्या जरूरत थी, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पार्टीज। दूसरा ये था, ये जो ऑपरेशन हुए हैं जिसके अंदर ये कहते थे कि भाई हम दूसरी पार्टियों से डिफरेंट हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि वे भी उतना ही इलेक्शनों में पैसा खर्च करते हैं, वही प्रचार है, वही प्रसार है, वही तरीके हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई आप में तो कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक विश्वास आम जनता का, खास तौर से यूथ का टूटा है कि एक नई पार्टी आने से पहले ही मर गई। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये मैं पूछना चाहूंगी आपसे। सितंबर 29 को सर आपके साथ हमने काम किया था विकास रैली में, और मैंने खुद वो एक रिसीव किया था एक पर्चा जिसमें लिखा गया था कि इनक्रेडिबली वेल ऑर्गेनाइज्ड रैली है, जो मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन। तो और वो भी हिंदुस्तान टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर की तरफ से आया था। तो फर्स्ट I'd like to congratulate you personally once again, because I think उस लेवल की मैनेजमेंट, उस लेवल का फॉर अ स्टेट लाइक दिल्ली, उस लेवल का एक अरेंजमेंट शायद नहीं देखा गया है हमारे देश में। तो ये जो वन ऑफ अ काइंड विकास रैली हुई थी मोदी जी की, आपको लगता है कि ऐसी रैली से जो हमारी बीजेपी की पॉसिबिलिटी है विक्ट्री की दिल्ली में वो बढ़ेंगी, और एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में स्प्लिट होगा अब, खासतौर से आफ्टर द स्टिंग ऑपरेशन और जो भी खुलासे हो रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी तय है कि आम आदमी पार्टी वोट लेगी, कितने % वोट लेगी ये कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता, पर सीट लेगी नहीं लेगी इसके बारे में कोई नहीं बता रहा कि उनकी कौन सी सीट आने वाली है। दूसरी बात है, अगर वो पहले 10% लेते थे तो अब उसमें 3-4% की गिरावट आएगी आफ्टर ये जो एपिसोड, अन्ना एपिसोड और सीडी एपिसोड सब हुए हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी वोट लेगी वो वोट खराब करेगी जी, क्योंकि आज लोगों के अंदर एक धारणा है कि भाई ये सरकार नहीं बना सकते हैं जी। तो जब सरकार नहीं बना सकते हैं तो ये वोट कटुआ हो गए कि सिर्फ वोट वेस्ट करेंगे। आज की जनता वोट वेस्ट नहीं करना चाहती है। जहां तक रैलीज की बात है, लोग रैलीज में क्यों जाते हैं? लोगों को सुनने, नेता को सुनने जाते हैं, लाइव सुनने जाते हैं कि भी उसका विजन क्या है, वो कैसे देश का भला कर सकता है। उसके बाद वो उसकी चर्चा करते हैं अपने मोहल्ले में आकर। ऐसा नहीं है कि अगर 2 लाख लोग जाते हैं तो 2 लाख होते हैं, वो 2 लाख परिवार एक तरह से वहां पर मौजूद होते हैं जो अपने परिवार में आके फिर डिस्कशन करते हैं कि भाई आज हम मोदी जी की रैली में गए थे, मोदी जी ने ये कहा है। तो इस रैलीज का बड़ा इम्पैक्ट होता है और उसके बाद लोग इस पे मनाते हैं। पहले तो यही कहते थे, अटल जी की 4 बार मीटिंगें होंगी और वो जब लोगों में चर्चा करेंगे, बताएंगे, भाषण देंगे तो एकदम हवा पलट जाएगी, और पलटती थी। ये सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी जब रैलीज होती हैं और वो लोग अपनी बात करते हैं तो लोग उससे जज करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं, उनके शब्दों से करते हैं, उनके डिलीवरी से जज करते हैं कि भाई आदमी कितना सच बोल रहा है। तो ये विजय जी ने जो कहा है, अगर आप सच और झूठ की बात, तो आप तो पढ़े रहे होंगे न्यूज़पेपर में, जैसे ही राहुल गांधी स्टेज पे आता है लोग मुड़ के चले जाते हैं या फिर अपनी पीठ दिखा देते हैं। तो उनकी रैली में शीला दीक्षित जी ने एक बात कही, जब कुर्सियां खाली हो गई तो भाई ये कुर्सियां क्यों खाली है? उन्होंने कहा पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो हमने भी कहा दिल्ली में भी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, दिल्ली खाली हो जाएगी जी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब
स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, बिजली बहुत महंगी हो गई है बिल्कुल और सब कुछ इतना महंगापन है कि आम आदमी तो यहाँ पर अब रहकर गुजारा नहीं कर सकता, उसको लगेगा किसी नियर के छोटे टाउन में जाकर मैं बस जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आई थिंक इनका जो पूरा विजन है लाउड एंड क्लियर है कि बीजेपी को वोट दे और थोड़ा विकास की तरफ अब बढ़ने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास अग्रवाल का है। विकास, अब अपना प्लीज परिचय देके अपना स्टेट बताइए, सिटी बताइए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। विकास का ड्रॉप हो गया है, तो प्रतिभा आप अपना सवाल पूछेंगी नेक्स्ट प्लीज। प्रतिभा म्यूट से हटाइए। हेलो विकास गोयल जी, मैं प्रतिभा तिवारी एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। My question is to you, is that you really played a very important role in bringing Commonwealth Games to India, and which later became a synonymous to one of the biggest scam. So I just wanted to know what are your thoughts on this question. देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स तब आए थे जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। हाँ, और उस समय हम सब लोगों को लगता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के कारण हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी जाके जी, और हमको लॉसेस नहीं होंगे, हमको इनकम भी होंगी, और सबसे बड़ी बात है स्पोर्ट्स प्रमोशन होगा जी। और स्पोर्ट्स प्रमोशन का सबसे अच्छा तरीका कॉमनवेल्थ गेम्स का था। ये सारे गेम्स दिल्ली में नहीं होने चाहिए थे, देश के अलग अलग पार्ट में होने चाहिए थे, और कहीं कहीं तो गाँवों के अंदर भी होने चाहिए थे, ताकि गाँव तक हमारा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर पहुँचता। पर हुआ क्या, जानबूझकर इन खेलों को लेट किया जाता रहा। तो क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर था, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं था पर मैं स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर था, तो फर्स्ट डे अशोका होटल में जो कन्वेंशन थी स्पोर्ट्स मीट की थी, उसमें मैंने खड़े होकर कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसमें बहुत बंगलिंग हो रही है, और मैंने वो आवाज़ सबसे पहले उठाई थी जी। और वही हुआ कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर ये कहा गया था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, ये कहा गया था कि 500,000 करोड़ के अंदर ये सारे कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएंगे, क्योंकि स्टेडियम्स तो हमारे पास बने हुए हैं, किंतु उसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट बना, 70,000 करोड़ रुपए की करप्शन हुआ, उसके लिए सुरेश कलमाड़ी जेल के अंदर गए, शंगलू कमेटी की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के खिलाफ आई, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था वो या तो अनयूटिलाइज्ड पड़ा है या सब वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है जी। और कॉमनवेल्थ गेम्स पे पूरे देश को बैड नेम इसलिए मिला कि उससे हमारी इमेज टार्निश हुई, कि इनके खेलों के अंदर हमको नुकसान भी हुआ और हमारी रेपुटेशन भी डाउन। But it showed a very bad impact of our country, right? Yeah, that's right. That's right. Okay, thank you so much. Thank you Pratibha for your question to Vijay Goyal जी। विकास अग्रवाल का ड्रॉप हो गया है, तो उनका सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। Tell us about the issue specific reports released by Delhi BJP under your guidance, जो खास तौर से आपकी जो वेल रिसर्च रिपोर्ट्स, चाहे वो बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, किसी भी इशू के लिए हो, उनके बारे में थोड़ी डिटेल मांग रहे हैं। और when on coming to power, what are the issues concerning Delhi that BJP will address on priority? देखिए, 5 इश्यूज हैं दिल्ली के हमारे सामने जी। पहला है महंगाई, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा है बिजली, चौथा है पानी, और पांचवा है महिलाओं की सुरक्षा। इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करना है, झुग्गी झोंपड़ियों को फ्लैट बनाकर देने हैं, स्लम को मालिकाना हक देना है, गांव देहातों के अंदर हमको सड़क, सीवर, बिजली, पानी की समस्या होनी है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। पिछले 2 साल में बिजली के दाम 72% बढ़ गए जी, और अभी 300% और बढ़ेंगे। उसको इस कांग्रेस की सरकार ने रोका हुआ है, हालांकि उनकी सैंक्शन दे दी है बढ़ाने की जी, इसलिए रोका हुआ है कहीं वोट उनके खिलाफ ना चले जाएं। इधर वोट डलेंगे, उधर बिजली के दाम बढ़ेंगे। हमने कहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बिजली के दाम 30% कम करेगी। तो लोग हमको कहते हैं आप कैसे 30% कम करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, 1996 में मोबाइल का रेट जो था 16 रुपए था, इनकमिंग एंड आउट गोइंग, और आज रेट 30 पैसे इसलिए आ गया क्योंकि उनमें बीच में कंपटीशन हो रहा है। एयरटेल, एयरसेल, सैमसंग, आइडिया, वोडाफोन, इनमें कंपटीशन हो रहा है। ऐसे हम बिजली कंपनियों में, टाटा में, रिलायंस में, बीएससी, एनडीपीएल और 6 कंपनियां लेकर आएंगे। उनमें जब कंपटीशन कराएंगे तो बिजली के रेट नीचे आएंगे। हम इनका सीएजी ऑडिट करेंगे ताकि ये फेक लॉसेस को सबमिट ना कर सकें। हम इनको आरटीआई के अंदर लाएंगे। हम इनको कहेंगे भाई मार्केट में जाओ, सस्ती बिजली खरीद के लाओ। जैसे अगर मैं टमाटर खरीदूंगा कमला नगर से तो मुझे महंगे मिलेंगे, पर मैं सब्जी मंडी से खरीदूंगा तो मुझे सस्ते मिलेंगे। तो ऐसे ही ये भी अगर बिजली को दूर दराज जाकर सस्ती खरीद के लाएंगे, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करेंगे, तो बिजली सस्ती मिलेगी तो आपको बिजली ज्यादा देंगे। पर आप लोग, अब जनता बोलती नहीं है, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है हम कुछ कर नहीं सकते। पर मेरा ये कहना है आप सब कुछ कर सकते हैं।
लगातार बोलते रहिए। पार्कों में घूमने जाएं तो वहां बोलो, मार्केट में जाएं तो वहां बोलो, घर में परिवार को बोलो, उससे सरकार के अंदर एक डर बैठता है। ऐसे ही पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की शॉर्टेज की इतनी समस्या नहीं है। अगर ये सरकार कहती है कि 850 MGD पानी उपलब्ध है, तो एक आदमी 15 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है, उससे 850 MGD में कहीं ना कहीं हमारा गुजारा हो सकता है। पर इस सरकार को मालूम ही नहीं पानी कितना उपलब्ध है जी। तो असल प्रॉब्लम है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर मैनेजमेंट की। जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पानी ज्यादा है, जहां पानी चाहिए वहां पाइपलाइन नहीं डली है। आपको मालूम है दिल्ली के अंदर 40% एरिया के अंदर पानी की पाइपलाइन ही नहीं डली हुई है और 50% एरिया के अंदर सीवर लाइन ही नहीं डली है। आपको मालूम है 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम में रहते हैं, गांव देहात के अंदर रहते हैं, जहां बेसिक फैसिलिटी नहीं है। आज भी शौचालय के लिए छोटे छोटे बच्चे आपको सड़कों में बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं कि भाई इन चीजों का विकास करना है। वाटर का भी काम कम कर सकता है। अभी आपको जानकर खुशखबरी होगी एक कि दिल्ली सरकार आपके घरों के अंदर 6,000 रुपए का मीटर बिल्कुल फ्री लगा रही है जी। तो मैं लोगों को कहता हूँ ताली बजा दो, तो लोग ताली बजा देते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ ये 6,000 का जो बिल है ये आपका 6,000 का जो मीटर है ये आपका 60,000 का बिल बना देगा। जैसे बिजली का बिल आप देखते हैं, आपके यहाँ जो बिजली का मीटर लगा है वो डिजिटल है, किंतु पंखा मैकेनिकल है, फ्रिज मैकेनिकल है, टीवी मैकेनिकल है, सारे साधन मैकेनिकल हैं और वो जो है डिजिटल है। तो जब आप अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लगाते हैं, जिसको आप कहते हैं रात भर छोड़ दो कोई बात नहीं, वही आपका 150 रुपए की बिजली का बिल बिठा देता है जी। तो इसीलिए आप समझिए कि बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, करप्शन, ये हमारे लिए बहुत इश्यूज हैं। इसके अलावा युवाओं को रोजगार है, नए स्कूल, नए कॉलेज, नए हॉस्पिटल्स खोलने हमारे लिए प्रायोरिटी के ऊपर हैं। हम चाहते हैं यमुना साफ हो। यमुना को साफ करने का ऐसा ही तरीका है जैसे भाई मेट्रो कैसे बनी है जी। एक जापानी फर्म को आपने ठेका दिया, वो जापानी फर्म आकर और मेट्रो बनाती जा रही है जी। इसी तरीके से हम यमुना का ठेका किसी को देंगे, कहेंगे भाई आपको हम 2,000 करोड़ देंगे, यमुना साफ करके उसका ताला चाबी हमको सौंप देना, जब साफ हो जाए और अपनी पेमेंट ले जाना, तो साफ हो जाएगी। पर आप 9300 करोड़ रुपया यमुना के अंदर खर्च कर चुके हैं। यमुना मैली की मैली है। इस कारण से है कि अगर आप लोग नहीं जागेंगे तो अकेली पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर सकती। इसलिए फॉर्म योर ओन NGOs, फॉर्म योर ओन RWAs, हार्ड वर्क करिए और गवर्नमेंट के डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व रहिए, ये मैं चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा इन्होंने विजय जी ने आपको एक विकास के क्वेश्चन पे एक बहुत अच्छा एक सजेशन दिया है कि जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट हम लोगों का रहेगा उतना ज़्यादा सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी और हम इन्फॉर्म रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा सर ट्विटर के थोड़े क्वेश्चन देना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन हैं जो मैं साथ में जोड़ के आपसे पूछूंगी। ये है रोहित गुप्ता रोहित 93 हैशटैग और सॉरी ट्विटर हैंडल, और रामकृष्ण त्रिवेदी _RK। दो अलग क्वेश्चन पूछे बट आई थिंक सिमिलर है। रामकृष्ण त्रिवेदी ने पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपिंग वर्क्स किए हैं, बहुत विकास किया है गुजरात में, तो उससे लेके आपका दिल्ली डेवलपमेंट में विजन क्या है। और रोहित पूछते हैं कि हाउ डू यू अपलिफ्ट द पुअर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ बीजेपी इन दिस रिगार्ड। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा विकास का जो मॉडल है उसके अंदर मेरा कहना है 5 साल की प्लानिंग नहीं, 20 साल की प्लानिंग करो। 20 साल बाद दिल्ली की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि हर साल दिल्ली में बाहर से 5 से 6 लाख लोग आते हैं यहाँ पर रोजगार पाने के लिए। तो जरूरी है उसके लिए नेबर स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। मोदी जैसा प्रधानमंत्री आएगा तो इन स्टेट्स में डेवलपमेंट करने की बात करेंगे, तो उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए बिहार में, यूपी के अंदर, ताकि उधर के लोग इधर कम से कम आए रोजगार की तलाश के अंदर। दूसरा, ये जो जितना NCR एरिया है, इस एरिया के अंदर भी आपको डेवलपमेंट, तो NCR एरिया को डेवलप नहीं किया गया, उससे सारा लोड जो है यहाँ पर आ रहा है। तो भाई आपके 20 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होने वाली है, उसके हिसाब से आपको कितना सड़क, सीवर, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये सब चीज चाहिए होंगी, उसकी आज आप कल्पना करिए। नहीं तो आप क्या करते हैं, पहले 6 फुट की सड़क बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, 12 करते हैं, 12 को 50 करते हैं, 50 को 60 करते हैं, वही सड़क बार बार टूटती रहती है। अंग्रेजों की तरह जैसे कनॉट प्लेस की प्लानिंग हुई, 100 साल की उन्होंने प्लानिंग की थी। ये जो यमुना का ब्रिज खड़ा हुआ है, इसकी एज 100 साल थी, अब ये उससे भी ज्यादा आगे चलता जा रहा है क्योंकि इतना मजबूत बना था। तो पहला मेरा विजन ये है कि 20 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको इसके अंदर चलना चाहिए। जी, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? ये वही था, आई थिंक डेवलपमेंट से कैसे पॉवर्टी अपलिफ्ट होगी हमारी। देखो, दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, गरीबों के लिए हम क्या करते हैं,
इनको सब्सिडी दे दो, इनको कपड़े दे दो, इनको सस्ता अनाज दे दो। वो कोई सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो वोट पाने का तो सोल्यूशन हो सकता है पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब होना चाहिए इनको नौकरी दो, इनको पढ़ाई दो। तो सबसे बड़ी बात है, तो इनको पढ़ाना पड़ेगा। आपको पढ़ाना के लिए ईच वन टीच वन ऐसा सिद्धांत करना पड़ेगा, एनजीओस को शामिल करना पड़ेगा, दूसरी जो संगठन स्वयंसेवी संगठन है उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर इनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी इनकी गरीबी दूर होगी जाके। और हम में से हर एक आदमी को ये होना चाहिए कि उनके आसपास के रहने के लोग जो गरीब लोग हैं उनको वो पढ़ाएं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा दें। पहले आपने देखा होगा लोग धर्मशाला बनाते थे, अस्पताल बनाते थे, और स्कूल बनाते थे, कॉलेज बनाते थे। अब मैं देखता हूँ कोई लोग बनाते नहीं हैं, जो बनाते हैं सब पब्लिक स्कूल बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीस इकट्ठी करने के लिए बनाते हैं। तो अभी जिन्होंने पुरानी धर्मशालाएं बनाई थी उनके बच्चों ने उनके अंदर मार्केट्स बना दी हैं। अब धर्मशालाओं के अंदर कल्चर चेंज हो रहा है ये। तो इसलिए गरीबों की अपलिफ्टमेंट तभी हो सकती है जब आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दो चीज़ देंगे तो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने सही कहा कि विकास करने का तरीका फ्रीबीज बांटना नहीं है, इट इज एक्चुअली अपलिफ्टिंग द पुअर और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। तो सर लास्ट क्वेश्चन आज का, अनुपम पांडे हैं हमारे साथ अभी जुड़े, ये आपसे पूछेंगे। और आप प्लीज अनुपम जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना शहर बताइए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। नमस्कार विजय जी, अनुपम बोल रहा हूँ मैं नई दिल्ली से। मेरा विधानसभा क्षेत्र आपका पड़ेगा मेहरौली। मैं क्वालिटी एनालिस्ट हूँ गुड़गांव में। मेरा प्रश्न महिला सुरक्षा से संबंधित है। महिला सुरक्षा के लिए प्राथमिक आवश्यकता हमारी शिक्षा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम स्तर बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम दिल्ली में शिशु मंदिर मैं देखता हूँ बहुत कम है, तो बीजेपी सरकार का क्या प्रयास रहेगा? शिशु मंदिर जी, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो ये हमारा ही देश है जिसके अंदर छोटे बच्चे को भी दो लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है, हिंदी और इंग्लिश पढ़नी पड़ती है दोनों। बाकी के देशों में वो एक लैंग्वेज में पढ़ता है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर स्कूल्स अच्छे खोलने चाहिए। पिछले 10 साल से तो डीडीए ने एक लैंड नहीं दी है स्कूल खोलने के लिए जी, शिक्षा के स्तर के लिए। दूसरी बात यह है, जो एजुकेशन है वो बुकिश एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, वो प्ले वे मेथड से नर्सरी स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए जी। उसके बाद दूसरी की बात यह है कि भाई स्कूल्स में ये जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और बिना पढ़े बच्चों को पास किया जाता है। आपको मालूम है 8वीं क्लास का एक बच्चा एक दिन भी स्कूल नहीं गया और आंसर शीट के ऊपर लिख कर आ गया, हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ, और उसके बाद आप जानते हैं वो पास हुआ या फेल, उसको पास कर दिया गया जी। तो ऐसे के अंदर एजुकेशन कैसे बढ़ेगी? तो ये जो जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैं खुद जो था वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, मेरे सिस्टर ब्रदर्स भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे, तो भी अच्छी एजुकेशन थी। उस समय गवर्नमेंट स्कूल बड़े नामी माने जाते थे। आज गवर्नमेंट स्कूलों में उनको पढ़ाया जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते, गरीब लोग जाते हैं, क्योंकि टोटल एजुकेशन को फ्री कर रखा है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी बात है इन गवर्नमेंट स्कूलों की अपलिफ्टमेंट करनी जरूरी है, और इसके अंदर सबसे बड़ी टीचर्स को समझना होगा, नए सिलेबस लाने होंगे, और इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उसको और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को बनाना पड़ेगा। उससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और जितनी भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमको टाई अप करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ें, जो कि पहले ही वर्ल्ड के अंदर अपना कमाल दिखा रहे हैं। धन्यवाद विजय जी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत अच्छा लगा आपके सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके। पता चलता है ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज से एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा आती है। आई एम श्योर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें अभी देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे से सवाल पूछे हैं यहाँ पे, we all have a lot to take from you, and I would like to please ask for your closing remarks of how your experience was today with all of us. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास तौर से जो प्रश्न पूछे गए उससे मुझे लगता है कि जो आज का हमारा यंगस्टर्स है, युवा है, वो देश के बारे में बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ जानना चाहता है। मेरा पहला कहना आप लोगों को ये, आप खूब किताबें पढ़िए, टीवी देखने से और इंटरनेट पे बैठने से नहीं, बुक बहुत पढ़नी चाहिए। अभी ट्रेड फेयर लगा हुआ है, उसके अंदर घूमना चाहिए। यही आपकी लाइफ है जिसमें आपको खेलना भी है, मस्ती भी करना है, कैरियर भी बनानी है, जॉब्स भी लेनी है, सोशल वर्क भी करना है और अपना नाम भी कमाना है जी। तो उसमें आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यह, हमने अपनी लाइफ के अंदर बैलेंसिंग की, इसलिए हम सब काम करते हैं। हार्ड वर्क का कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हार्ड वर्क से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कि जो नए यंगस्टर्स हैं रात को देर से सोते हैं, सवेरे देर से उठते हैं, मॉर्निंग वॉक्स होती नहीं है। पर मैं ये भी देखता हूँ आजकल जिम्स बहुत खुले हैं,
और लोग अपने सेहत के प्रति बहुत जागरूक हैं, वो भी अच्छा लगता है मुझे। इसलिए देश और दिल्ली घूमिए, किसी ना किसी सामाजिक संगठन से जरूर जड़िए, कोई ना कोई सोशल वर्क करिए और आप देखेंगे, पाएंगे कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आए तो मेरे पास आइए, मैं आपको जोड़ूंगा राजनीति से, मैं आपको जोड़ूंगा सोशल वर्क से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में आप जैसे अच्छे लोगों के आने की आवश्यकता है। Thank you so much, sir. बहुत exactly इस बात पे seriously we feel like giving you an ovation. But with that thought that there's no alternative to hard work, I thank you for joining us, and I thank Namo Connect. Very good to have all of you on board. Thank you so much.